Hello students, welcome to my channel, that is Marwari College Intermediate section, and my today's topic is for class 12th student and the topic is structure. Today we will see what is the difference between array and structure, what are the similarities, the array and structure. So class is a member of the class where we define the variables and function, or structure is also a member of structure where we define the variables. So इस class में हम लोग variables के साथ साथ function भी define करते हैं, but in structure we define only the variables. That is the basic difference between the class and the structure. Now problems with array. Array, what is an array? Array is defined as contiguous area in the memory location. So array को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो मेमोरी में कंटिगस एरिया लेता है और सिमिलर डेटा टाइप का वो डेटा लेता है. जैसे इंट लिए हैं तो वो जो इंट m मार्क्स डिफाइन किए हैं तो वो मार्क्स का जितना भी डेटा लेगा वो इंटीजर टाइप होगा. अगर कैर हम लिए हैं और डिफाइन किए हैं साइज तो वो जो डेटा लेगा वो कैर टाइप का होगा. तो सेम डेटा टाइप वो एरे लेता है. सो ऑल्दो एरे greatly improved our ability to store data, there is one major drawback to their use. Each element, each box in array must be of same data type. So it is often desirable to group of data of different types and work with group data as one entity. We now have the power to accomplish this grouping with new data type called structure. So अगर एक टाइप का डेटा है, एक ग्रुप है, एक टाइप का ग्रुप है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा है तो उसको हम डिफाइन करते हैं थ्रू स्ट्रक्चर. So what is a structure? Structure is a collection of variable of different data types under a single name. It is similar to a class in both holds the collection of data of different data types. So class भी एक data type है जो कि different variables को hold करता है, collection of variables को. structure भी एक data type है, एक member है जो user defined data type है जो कि जो कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स को होल्ड करता है. बट उसमें क्या डिफरेंस बताया गया है कि इसमें हम लोग का क्लास में हमारा फंक्शन भी होता है लेकिन स्ट्रक्चर में हमारा फंक्शन नहीं होता है. नाउ प्रॉब्लम्स विदाउट यूजिंग स्ट्रक्चर. अगर आप स्ट्रक्चर नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. सो वी हैव ओनली यूज डेटा टाइप विच have been defined as C++ such as int, double and char etc. So it is possible to create our own data type if a user defined data type is called structure, class etc. So C++ में ये फैसिलिटी है कि आपका लाइब्रेरी फंक्शन भी है, पहले से डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है जो char, int, float है, और आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है जो स्ट्रक्चर और क्लास है. So structure can contain both built-in data type and other structures. So the concept of structure is pretty much the same as array except that in an array all the data is of same type, but in a structure the data can be of different type. So this is the basic difference between array and structure, that array में जो भी डेटा टाइप होता है वो सेम होता है बट स्ट्रक्चर में डेटा डिफरेंट टाइप्स का होता है. दैट इज द मेन बेसिक डिफरेंस. So if you want to store some information about a person, his name, citizen number, salary, you can easily create different variables name, city number, salary to store these information separately. So however in future if you want to store information about multiple person, now we need to create different variables of each information per person, name, city, salary, name, city 2, salary 2. So we can easily utilize now how big and messy code could be look like. Also since no relation between the variables would exist if going to daunting task. So
A better approach, we have to collection of all related information under a single name person and use it for every person. Now the code looks much cleaner, readable and efficient as well. So this collection of related information under a single name person is structure. So यहाँ एक example के through explain किया गया है कि अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको एक पर्सन के बारे में जानना है, डिफरेंट पर्सन है जिसका नेम, जिसमें नेम होगा, सिटीजन नंबर होगा, सैलरी होगा। अगर आपको ये करना है, क्रिएट करना, तो आप एरे के थ्रू करेंगे, नेम, सिटीजनशिप, नंबर और सैलरी। लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा तो आप नेम 1, नेम 2, सिटीजन 1 या नेम का एरे, सिटीजन का एरे बनाएंगे तो एक टीडीएस जॉब हो जाएगा, प्रोग्राम भी बहुत लेंथी दिखेगा। तो अगर आप एक पर्सन के अंदर में नेम, सिटीजन और सैलरी को क्रिएट कर देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, इसका कोड भी बहुत इजीली लिखा जाएगा और प्रोग्राम भी बहुत सुटेबल होगा। सो द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अंडर अ सिंगल नेम पर्सन इज अ स्ट्रक्चर. So this is the structure. So structure is a collection of similar type of variable. Now स्ट्रक्चर वेरिएबल असाइन कैसे किया जाता है? स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक कीवर्ड extract के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर फिर डेटा डिफाइन करते हैं, जितने भी डेटा मेंबर्स है उसको डेटा टाइप के साथ। द मोस्ट इफेक्ट मेथड फॉर डीलिंग विथ स्ट्रक्चर इज डिफाइन द स्ट्रक्चर ग्लोबली। इसको आप ग्लोबली डिफाइन करेंगे और उसके बाद आप इसको स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करेंगे। Now see the declaration of structure. The structure declared by the keyword struct followed by structure name, also called tag. The struct members variables are defined with their type, variable's name and inside opening and closing braces. Finally, the closing braces end with a semicolon denoted as this type, and the declaration also called structure specifier. तो कीवर्ड struct यूज होगा, उसके बाद नेम ऑफ द स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद डेटा होगा जो कि कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन होगा डेटा टाइप के साथ फंक्शन नेम। देखिए ये हो गया स्ट्रक्ट टाइप नेम, स्ट्रक्ट मेंबर फंक्शन नेम, जो भी मेंबर टाइप है ये हो गया डेटा टाइप और नाम, और लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, एक स्टूडेंट है जिसके अंदर नेम, एड्रेस, डिसिप्लिन और रोड जीपीए। ये हो गया स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्टूडेंट आपका स्ट्रक्ट नेम, नेम के अंदर कंपोनेंट्स है, ये दीज आर द कंपोनेंट्स मेंबर्स। सो स्टूडेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्ट टैग एंड is your brand new data type is like int double char. So जिस तरह से int double और char था वैसे ही student भी आपका हो गया। So name, address, discipline and GPA are struct members. Memory is not allocated at the time of its declaration. और ये important बात है, memory कब होता है? Memory is allocated when we declared struct variable. जिस समय आप struct variable define करेंगे उस समय आप memory define करेंगे। सी डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और यहां देखिए लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। सी वन मोर एग्जांपल, स्ट्रक्ट कार, स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग कंपनी, स्ट्रिंग इंजन साइज, इंट प्राइस और सेमीकोलन। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी, नेम, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, फ्लोट सैलरी, बंद हुआ, सेमीकोलन लग गया। सो डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ type struct. So the most efficient method of dealing with struct variable is define struct globally. अगर आप globally इसको define करेंगे
तो उसको सारे लोग एक्सेस कर सकेंगे, जितने भी उसके अंदर फंक्शंस हैं सब एक्सेस करेंगे. So this tell the whole world, namely main and any function in the program that new data type exists. This declare structure globally, place it before int main. int main के ऊपर में define करना है जिससे वो accept करेगा. So structure variable then can be defined locally in the main. इस तरह से ये हो गया एक डिक्लेरेशन, ऊपर में आप डिक्लेयर कर रहे हैं इंट स्टूडेंट टाइप ये, और मेन के अंदर आप उसका स्ट्रक्ट दो वेरिएबल बना रहे हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2. नाउ स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर बना के यहाँ पर जस्ट करली ब्रेसेस बंद करके स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 सेमीकोलन. और फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहां पर भी बना सकते हैं मेन के अंदर स्ट्रक्ट टैब स्पेस वेरिएबल 1 वेरिएबल 2. इस तरह से दोनों तरह से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए, स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए वी आर यूजिंग डॉट ऑपरेटर. सो द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज अ पीरियड बिटवीन द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड द स्ट्रक्चर मेंबर दैट वी विश टू एक्सेस. सो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्ट टाइप. सो एक्सेस कैसे करेंगे इसको, तो इसको इफ यू वांट टू एक्सेस एज ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टूडेंट 1 असाइन इट 50, तो वी कैन यूज इट विथ स्टूडेंट 1 डॉट एज इक्वल टू 50. so dot variable is used to access the member of the structure. see एक एग्जांपल, struct person name age salary. पर्सन का P1 बना इंटर नेम, P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज, सैलरी P1 डॉट सैलरी. डिस्प्ले करना है तो P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज, P1 डॉट सैलरी. सो इसको डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही एक्सेस करेंगे और डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही डिस्प्ले भी करेंगे. सो दिस विल बी द आउटपुट. So initialize करना access को like normal variable structure can be initialized at the time of declaration. Initialization of structure is almost to the similar initializing at array. इसका initialization same array जैसा है. So the structure of the object is followed by equal to sign and the list of the variable enclosed in braces can each variable separated by comma. So predefined जो वेरिएबल्स होता है उसको डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट नेम स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल टू डबल कोटेशन में अगर नेम है तो, और उसके बाद अगर इंटीजर है तो इस वे में डिफाइन करेंगे. सो दिस इज द वे हाउ वी इनिशियलाइज द प्री डिफाइंड डेटा इन स्ट्रक्ट. एंड डॉट ऑपरेटर जरूर यूज करेंगे स्ट्रक्ट के बीच में. दिस इज द डॉट ऑपरेटर. सी वन मोर एग्जांपल, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नेम एड्रेस डिसिप्लिन तीनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, फ्लोट जीपीए सेमीकोलन से बंद किए, इंट मेन ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, और एस नाम का यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर देखिए हम बनाए हैं, ये रहा स्ट्रक्ट टैग स्पेस स्ट्रक्ट वेरिएबल और उसको डिस्प्ले करेंगे एस डॉट ये नेम, एस डॉट एड्रेस, एस डॉट डिसिप्लिन, एस डॉट जीपीए, और यहाँ पर मेन बंद हो गया, स्ट्रक्ट को हम ऊपर बंद किए हैं. सो दिस विल बी द आउटपुट. नाउ स्ट्रक्ट वेरिएबल इन असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट हमेशा इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर आपका. सो द स्टेटमेंट assign the value of each member of S2 corresponding of member S1. S1 के हर एक member को आपको S2 में लाना है. Know that one structure variable can be assigned to another only when they are the same struct type. Otherwise compiler give an error. आपको same struct होना चाहिए, same उसका size होना चाहिए, तभी वो assignment use करना है, नहीं तो otherwise नहीं करना है. तो S1 equal to S2
जिसके थ्रू आपका डेटा आ जाएगा। इसमें देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा आप नहीं यूज कर सकते, ये ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते। ओनली यू कैन यूज द इक्वल टू असाइनमेंट स्ट्रक्चर को इसमें कॉपी करने के लिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड अरे। दोनों स्ट्रक्चर यूज करके आप प्रोग्राम को इजीली डिफाइन कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।